ऊंची आवाज के साथ अपने हाथों को ऊंचा उठा के अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। कलीसिया ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके भवन में परमेश्वर आनंद की भरपूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ऊंची आवाज से आमीन। कलीसिया कितने जन आनंदित हैं? हालेलुया। तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। तो आए सब जन, जितने जन जो यहां पे हैं, जो ऑनलाइन जो ब्रांचेस के साथ जुड़े हैं, आप सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गवाहियों को देखेंगे, कुछ टेस्टमनी को देखेंगे। जब आप गवाहियों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। आपका विश्वास, आपके फेथ को एक बूस्ट मिलता है। आपको पता लगता है कि परमेश्वर जो अपने वायदे का पक्का है, जो कहता है मैं कल, आज और युगानुयुग मैं एक साथ रहने वाला परमेश्वर हूं, वो अपने जीवित कलीसियाओं में कैसे बड़े बड़े काम करता है। तो सब जन अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहेंगे और आए परमेश्वर की जीवित महिमा के लिए हम कुछ गवाहियों को देखते हैं। जनवरी 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ESR ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ TB ਵਾਲੀ ਸਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ TB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਵੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਜਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 102 103 ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ESR ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ TB ਵਾਲੀ ਸਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ TB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਵੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਿਸੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੇਟਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। रसौलियां आउट, चेक करो रसौलियां अभी, राइट नाउ थेरेपी, वर्ड को याद रखो, चेक करो। यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। परमेश्वर तुम्हें छू चुका है और चंगा कर चुका है। कमजोरी का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जद परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟ ਗਈ। ਜਦ ਟੀਬੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਫਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ੌਕਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਮਨਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੁਣ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया। आज हमारा ये विश्वास है कि जितने जन आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आज खुदावंद का आत्मा आपके जीवनों को छुएगा। बड़ी गवाहियां आज आप लेके वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें खुदावंद के अद्भुत कामों के लिए। तो सब जन इस तरह से बैठे रहें, ये समय टेस्टमनीज को सुनने का पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुने खुदावंद के काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा रंजीत कौर नाम है जी। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? अंबरसर के रहने वाले हैं। आज से 3-4 महीने पहले आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? ऑटो से गिर गई सी ते मेरी नस दबी गई सी। जो मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा नस दबी हुई है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਵਾ। फिर इसलिए मैं बड़ी परेशान सी, दवाई खाती सी, थेरेपी करा रही सी और चर्च भी आती सी, चर्च के नाल मैं जुड़ी हुई हाँ। ओके, जब ये आपके साथ ये हादसा हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने आपको ये बोला था कि आपको कंप्लीटली बेड पे रहना पड़ेगा। हाँ जी, उन्होंने बोलिया कि तुम रेस्ट करनी पैनी, बेड ते रहना पैना वा। और फिर अगर टॉयलेट बाथरूम जाते थे तो कैसे जाते थे, किसके सहारे से? मेरे हस्बैंड मैंने खड़दे सी वॉशरूम च, मैं के सहारा लेके चलती सी। अपने आप नहीं चल पाते थे एक कदम भी? अपने आप नहीं चल पाए से। तो एक डॉक्टर के पास जाकर आपने ट्रीटमेंट करवाना जब शुरू किया, कैसे कैसे ट्रीटमेंट, कैसे कैसे इलाज चलता रहा था आपका? और डॉक्टर ने कहा थेरेपी करवानी, मैं थेरेपी करवाती रही। हाँ। 5-6 थेरेपियां कराई हैं, कोई आराम नहीं आया। बड़ी परेशान सी मैं उठन बैठन तो, इसलिए मैंने एक दिन इथे चर्च च आई, कार्ड बनवाया और मम्मा से ले हैंड करवाई। ओके, 31 मई 2026 की बात है जब इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराई। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद फिर? ले हैंड से मैंने ऐसे है कि जब मेरे विचों कोई चीज निकल के गई, मैं उठ के खड़ी, मम्मा ने गलबात भी की है मैंने। और उसके बाद चेक करके देखा उस बार मैं चेक करके देखा, मैं बिल्कुल ठीक सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चलने फिरने में प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं थी।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ अभी कितने दिन हो चुके कि बिल्कुल ठीक है ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि उस लेहन के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने जो छुआ, ऑपरेशन आपका कैंसिल हुआ, परमेश्वर ने फ्री किया और उसके बाद से ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं। आज जितने भी जन ऐसे जो हीलिंग लेना चाहते हैं, जो लोग हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, जो चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, या रीढ़ की हड्डी के बीमारियां हैं, या शिकंजों का सहारा यूज करते हैं, या व्हीलचेयर के सहारे से, आज जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं और जब आज प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, वो हीलिंग, वो चंगाई आज आपके जीवनों के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। आज उस बीमारी का, उस शर्मिंदगी का आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। कलीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, थैंक यू जी। ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ जी, प्रकाश कौर मेरा नाम है जी, मोगे शहर के रहने वाले हैं। 9 मार्च 2025 को बाइक पर बैठते समय अचानक से आपके चूल्हे में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हाँ जी। ओके, खुल के बताएं कैसे प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या दिक्कत रही इसकी वजह से? हाँ जी, मैं ड्यूटी तो बाद मैं मोटरसाइकिल से बैठन लगी तो चूल्हा घुम गया मेरा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਦੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਦੀ ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੰਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਕਸਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੂਲਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे उस समय? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ मैं बेड रेस्ट चली गई ਸੀਗੀ। और यहाँ तक के बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे आप? नहीं जी, मेरी एक मतलब हड्डी ब्लॉक हो गई सी, ਲੱਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। और आपको मैं कुछ खांदी पींदी नहीं ਸੀਗੀ, जल्दी सारिਆਂ ने जवाब ही दे ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। डाइपर लगा कर रखते थे आपको? हाँ जी, मेरी बेटी मेरे डाइपर लगाती ਸੀਗੀ जल्दी। उसका डैडी ते बेटी जल्दी हर रोज प्रेयर करते चेचा में, क्योंकि जब डॉक्टर ने एक्सरे किए उन्होंने ये बताया कि राइट चूल्हा जो है वो अपनी जगह से हिल चुका है और राइट टांग में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसकी भी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी। कितने डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी, 3-4 डॉक्टर ਇੱਥੇ गए थे, 2 डॉक्टर ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ गए। फिर जल्दी ਸਾਨੂੰ पड़ोसी ने दसिया, घर ਵਿੱਚ ही डॉक्टर आया, उसने भी जवाब दे दिता। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे। जल्दी 5-6 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, पर फर्क कुछ नहीं नजर आता फर्क था। कुछ नहीं नजर तो सीगा। लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला कि कैसे ठीक कैसे हो सकता है ये? उसने बोलिया भी मेरा तो जवाब आ, पर मेरे हस्बैंड ने बोला भी कोई गल नहीं, तू अपना इलाज शुरू कर, सानू परमेश्वर ते विश्वास आ, ये ठीक हो जाएंगे। आप कितने महीने पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? हाँ जी, कितने महीने तक? 7 महीने। 7 मंथ? हाँ जी, हाँ जी। 7 महीने ये कंप्लीटली बेड के ऊपर रहे। धीरे धीरे रोग बढ़ने लगा, उसकी वजह से राइट टांग ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद से लेटे रहने के कारण राइट टांग के ऊपर एक बड़ा जख्म बनना शुरू हो गया, बेड सोर होना शुरू हो चुका था आपको। हाँ जी। इन्फेक्शन बढ़ गई, हाँ पूरी जी। पूरी रात सो नहीं पाते थे, दवाइयाँ लगातार खाने की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम आ गई और कुछ भी खाते थे तो आपको वॉमिटिंग्स, उल्टियां आनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी। आपको क्या लगता था कि ठीक हो सकते या नहीं, क्या मन में आता नहीं था? जी, मैंने पूरा विश्वास सीगा, मैं कहा परमेश्वर डिग्गियां नु खड़े करदा है, मैं भी खड़ी एक दिन हो ही जाना है। और अब विश्वास में बने रहे हाँ जी, परमेश्वर के। विश्वास मैंने पूरा विश्वास सी। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे आप हील हुए? मैं जल्दी 10वें महीने ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਹਲਕਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ 5-7 ਕਰਮਾਂ में तुर पई। आपने चेक करके देखा हाँ उसी जी, टाइम चेक अपने आप करके, को? हाँ जी। तो कैसा लगा जब प्रेयर को आपने रिसीव किया तो? मैं ਮੈਨੂੰ ਹੌਲਾਪਨ महसूस हो गया, और उसके बाद आप बिल्कुल हील हो चुके थे? बिल्कुल हील हो चुके। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? नहीं जी। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी? ना जी, बंद था दवाई। अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? मैं 8वें महीने तो 10वें महीने तो जल्दी पूरी हीलिंग शुरू हो गई है मेरी। मतलब अभी 8 महीने के करीब हो चुका, 8-8.5 हाँ महीने जी, हाँ के जी, करीब। मैं बिल्कुल बिल्कुल तुरदी हूँ, बिल्कुल। आप चल के देखिए जरा, चलिए सिर्फ तारीफ करें क्योंकि कलीसिया। साडा रब जिंदा है। ऊंची आवाज
आवाज पे। साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। मैं यहूदा देश यसू नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देश यसू नासरी दा बेटा, मैं राजियां दे राजे यसू नासरी दा बेटा, मैं राजियां दे राजे यसू नासरी दा। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि मेरे विश्वास करने के कारण मैं तुझे चंगा करूंगा, यानी परमेश्वर देखता है आपकी ओर कि आपका विश्वास, आपका फेथ कितना है। बीमारी कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी भयंकर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो मायने नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपके फेथ को देखता है। आज अगर आप फेथ करते हैं, आज उस शर्मिंदगी का आपके जीवन में आखिरी दिन है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची 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 आवाज में हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर मनजिंदर कौर की गवाही है। बहुत अद्भुत गवाही है इनकी। टेस्टमनी की अप्रैल 2025 में इनको लंग्स टीबी हुआ, जिसके कारण डॉक्टर ने इनका बेड, इनका रूम, इनके बर्तन पूरी तरह से अलग कर दिए थे और पूरी तरह से ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਜਲਾ ਕਰਪੂਤਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ 4 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਸ ਟੀਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਰਤਨ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੋਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡ੍ਰਿਪਸ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ। 5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਾਰਡ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। फिर 19 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो टीबी का रोग इस बहन को छोड़ के गया। और उस ले हैंड के बाद परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद किया। जो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, आज आप देख पा रहे, पूरी तरह से चल पा रहे, दौड़ पा रहे। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने भी जन ऑनलाइन, जितने भी जन हेड चर्च में मौजूद हैं, आज हमारा विश्वास है कि आप छुटकारा लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? अविनाश। कहाँ के आप रहने वाले हैं? होशियारपुर के। ओके, कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था बताएं जरा। बाइक से हुआ था। कैसे हुआ था?
जब हम जा रहे थे तो वो रास्ते में आके हमारे बीच बच गया था। आप मोटरसाइकिल पे थे? हम मोटरसाइकिल पे थे। ओके। बाइक पे। और जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से इनकी लेफ्ट टांग के ऊपर भयानक चोट आई। सिस्टर आप बताएं कि इनकी क्या कंडीशन थी जब चोट लगी, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे पति की बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसको होश भी नहीं था। मेरे डैडी जी ने जाके इसको अस्पताल लेकर गए पर ये खत्म हो चुका था। मेरे यीशु जी ने इसकी जान बचाई, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु क्योंकि का जब इनको धन्यवाद। हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया इनको, क्या बताया कि कहाँ कहाँ चोट आई है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? इसकी 2 हड्डियां टूट गई थी लात की, ये बेहोश हो चुका था। फिर इसके बेहोश के टीके लगाए, इसको ठीक किया उन्होंने डॉक्टर ने, पर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था इसका। और डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने ये कंप्लीटली बेड पे रहेगा, बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था, अगर थोड़ा सा खड़े होते थे तो इस शिकंजे का आप सहारा लेते थे। ओके। शिकंजे का सहारा लेते थे पहले हम, अब ऐसे चलने लगे जब प्रभु की दुआ हुई ऐसी। क्योंकि यंग एज में ये भाई बेड के ऊपर जा चुका था और आप पूरी फैमिली इनको देखकर हमेशा रोते रहते थे। एक्सीडेंट के बाद इनकी घर की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब ये किसी के कहने पर चर्च में आए, गवाहियों को सुना, विश्वास बना, 4/6/2026 की मीटिंग को इन्होंने हीलिंग हॉल में बैठ के अटेंड किया था। अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उसी टाइम जब इन्होंने चल के देखा तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसी दिन ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। शिकंजे को छोड़ के अपने आप चल के देखा, परमेश्वर ने हील किया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। आप चल के दिखाएं इसको, उठाएं, खुद उठाएं इसको, नहीं आप तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम, कोई भी हीलिंग बड़ी नहीं है कि आपकी बीमारी बड़ी है तो शायद ये खत्म नहीं होने वाली। जो परमेश्वर 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर सकता है, वो आपको हील कर सकता है, आपको बीमारियों से आजाद कर सकता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सकता है। और आज अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी गवाही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी यमुना नगर चर्च ब्रांच से ब्रदर अनमोल की है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी टेस्टमनी की 15 साल की उम्र में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वो नशा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, जीने तक की आस छोड़ चुकी थी। और आज ये यमुना नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम अनमोल है। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। 10 साल पहले मैं गलत संगति चला गया था, मैं नशे में चला गया था। 2 डब्बी में सिगरेट की पी जाता था, 2 बोतलें में बियर की पी जाता था, 2 बोतलें में दारू की पी जाता था। फिर मेरे को नई नशा मिलता था, मैं यादों से धार मांग के नशा करता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुका था। लोग शराबी कहते थे मेरे को, घर में लड़ाई झगड़े होते थे मेरे। मैं लाइफ में बहुत परेशान हो चुका था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरा ऐसा जी करता था मैं अपने लिए मर जाऊं। फिर मेरे को एक दोस्त ने कामचर के बारे में बताया, मैं प्रार्थना को सुना, वहाँ प्रार्थना को ग्रहण किया। वो दिन से नशे से बिल्कुल नशे से जात हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उनकी पूरी जिंदगी को बदल रहा है। क्योंकि जब लगातार पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं और वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है। लगातार ये भी ब्रदर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 14 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया
कि परमेश्वर के दास जो प्रेयर कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। उसी समय अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने, जो सामर्थ आज भी इस जगह के ऊपर मौजूद है, उसी सामर्थ ने इस भाई को छुआ, उस नशे से आजाद किया और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। अभी पूरे 10 महीने हो चुके, एक भी बार नशा करने को मन नहीं किया, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर आजादी का आत्मा है। वचन कहता है कि वो आजाद करने वाला आत्मा है। जब हम लगातार उसकी हजूरी के साथ बने रहते हैं तो वो फिर बड़ा छुटकारा हमारी जिंदगियों में पैदा करता है, वो बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगियों में पैदा करता है। हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों को नसीब करेंगे यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहे हैं, उनको गवाहियों के साथ खड़ा कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार जब आप चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोते जाते हैं और अक्सर परमेश्वर के दासी हमेशा गाइड करते हैं कि आपने लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने बोने को कंटिन्यू रखना है ताकि परमेश्वर फाइनेंशियल वेज आपके जीवन में परमेश्वर खोल सके, परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। तो हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज आती हैं कि खुदावन ने लोगों को ब्लेस किया, लेकिन जस्ट फ्यू टेस्टिमनीज, कुछ गवाहियां देते हैं आपको ताकि आपको ये समझ आए कि परमेश्वर हील भी करता है, डिलीवर भी करता है और परमेश्वर आशीषें भी देता है। ये टेस्टिमनीज प्रूफ है आपके सामने कि परमेश्वर ने इनके जीवन में एक्सीलेंट वेज के दौरान इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर नवरूप ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये +2 में ICSE बोर्ड में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ, मेरिट लिस्ट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ये एक फेवर है परमेश्वर का जो परमेश्वर ने इस भाई के ऊपर किया। सिस्टर रंजीत कौर ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके हस्बैंड की है कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड की लाइफ में काम किया, क्योंकि उन्होंने 10 बार कम से कम इटली की PR के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर बार रिजेक्शन का, फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रभु के घर के साथ जुड़े रहे, अपने बोने को लगातार परमेश्वर के घर में लाते गए, तो परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के जीवन में काम किया। इटली की PR के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सिस्टर रितिका ये हरियाणा के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया और इनको एक नई जॉब के साथ, जिसकी काफी समय से ये वेट कर रहे थे, परमेश्वर ने उन रास्तों को खोला और एक अच्छी और एक नई जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो प्रभु का थैंक्स करें तालियों के साथ। ब्रदर अवतार ये लुधियाना के रहने वाले, ये गवाही इनके बेटे की है कि परमेश्वर ने इनके बेटे को इटली में वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। खुदावन ने रास्ते खोले हैं और परमेश्वर ने एक नया वे ओपन किया इनके जीवन में कि आज वो सारे दुख कट चुके यीशु मसीह के नाम में, और जिस चीज की ये वेट कर रहे थे वो आनंद, वो खुशियां परमेश्वर ने इनके जीवन में दी हैं। नेक्स्ट टेस्टिमनी राम सिंह है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। काफी समय से ये चाहते थे कि अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करें, लेकिन हर बार पैसा इकट्ठा करते किसी और एक काम में वो लग जाता था। लेकिन जब बोना शुरू किया, अपने टाइट को बोने में वफादार है, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जो दशवांश देता है, परमेश्वर कहता नाश करने वाले को मैं तेरे जीवन में से घुड़कूंगा। और जब इन्होंने परमेश्वर के घर के साथ वफादार रहना शुरू किया, बोना शुरू किया, खुदावन ने ब्लेस किया और अपनी लैंड के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य किए और परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। और इस तरह से एक और टेस्टिमनी जो हमारे पास है, इनका नाम है बेबी देवी और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया। ये बिहार गया चर्च ब्रांच में इसमें मौजूद है। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी टेस्टिमनी को, इनकी गवाही को सुनते एक बार। सभी के जय मसीह। मैं गया ब्रांच से, मेरा नाम बेबी देवी है। मेरा लहू बहने के रोग था, 7 साल से लहू बहने का रोग था। मेरा घर का काम बेटी बहू करते थे और
पड़ल रहते थे, 7-8 कपड़ा बदलते थे दिन भर में। लहू बहने के रोग छूटते नहीं थे, एनी टाइम गिरते रहते थे। कपड़ा लेते थे, जहाँ भी बैठते थे वहाँ लग जाते थे। फिर ने 7-8 डॉक्टर के भी चेंज किया, डॉक्टर भी गए थे। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर हो सकते थे, जहाँ बजदानी सड़ चुका था, आपको कैंसर हो चुका था, बजदानी निकालने पड़ेगा। डर चुका हूँ कि कैसे होगा, क्या कर सकते हैं। मेरा एगो सिस्टर बहन ने बोला, हमारा चर्च के बारे बोला। हम चर्च में गए थे तो देखा बड़ा बड़ा गवाही सुनते देखा हम गवाही, तो मैं अथी कर विश्वास किया कि प्रभु ने इतना बड़ा बड़ा गवाही चंगे करते थे, मेरा भी चंगे कर देते प्रभु। तो प्रभु के दास ने मेरा पर सब पर प्रार्थना किए थे। प्रभु के दास मैं रिसीव किया था। जो दिन से मेरा लगता थी गर्माहट आ गया, और जैसे कि मेरा शरीर से कुछ छोड़ के निकल गया। चंगे भला हूँ से प्रभु के धन्यवाद, दास दासन के धन्यवाद, सभी के जय मसीह। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर हर तरह की बीमारी से आपको हील करने की, आजाद करने की ताकत रखता है। आज जितने जन अब यहाँ पे मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवनों को छुएगा। हर तरह की बीमारियां, हर तरह के रोग आज आपके जीवनों में से आउट होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। और जिस तरह आप हेड चर्च में, यहाँ पे कामरा में आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं, सेम ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, हील करता है, डिलीवरेंस देता है। आज वैसे ही काम ब्रांचेस में भी आप होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज आप जानते हैं कि बहुत ही स्पेशल डे है, आज खास दिन है, फादर डे के ऊपर परमेश्वर के दास को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि उनकी टीचिंग, उनकी अगुवाई के नीचे रहकर आज हम सब आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हम सब विजडम को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य कर रहा है। तो एक बार जोर से अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जितनी ताकत आपके हाथों में है, तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। और आज